Hello students, my name is Dr. Avi Bogna. Today I will teach you the chapter production function in macroeconomics. I have already explained you production function, total product, average product, and today topic is marginal product. Today I will teach you what is defined marginal product, which is in class 11 CBSE board and class 12th ICC board. So I am telling you what is marginal product. Chapter name is what? Production function, and it is production function and book macroeconomics. We are doing what? Microeconomics. In microeconomics we are doing production function. So first of all I will tell you what is marginal product. What is marginal product किसे कहते हैं? Marginal product means MP. Marginal product means MP. Marginal product, how you can define marginal product? Means change in total product, change in total product, change in total product when one more unit of the variable factor is added. When one more unit of the variable factor is added. When one more unit of the variable factor is added. Variable factor is added, है ना? When one more unit of the variable factor is added. Fixed factor remaining constant. इसमें क्या होगा? Fixed factor क्या होगा? Constant होगा. Fixed factor remaining constant. Fixed factor remaining constant. Fixed factor remaining constant. Okay. Means marginal product कहते हैं change in total product when one more unit of the variable factor is added. Fixed factor remaining constant. जब हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया जब हमने वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को ऐड करा. ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्ट. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. देयर आर टू फॉर्मूला मार्जिनल प्रोडक्ट. फर्स्ट फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर एंड सेकंड फॉर्मूला देखिए, एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस 1. और एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एमपी इज इक्वल टू del TP upon del L. Del TP we can say change in total product, or del L means change in labor when one more unit of variable factor is added. Change in labor. और ये TP n minus 1. Okay students. Now this formula we can do with the help of example. We can do marginal product with the help of example, and we can find out how we can use this formula. तो देखिए, when output increase from, when एक क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको. when output increases from 50 to 55 units. 50 to 55 units कह लें. when output is increased from 50 to 55 units, input of labor increases from, when output increase from 50 to 55 units, input of labor increase from, input of labor increases from what? 6 to 7 unit. Increases from 6 to 7. एक एडिशनल यूनिट होगा, 6 to 7 यूनिट्स. तो हम एमपी कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी हम यहाँ निकालते हैं. देखिए, टीपी एन मीन्स टीपी 7 और टीपी 7 माइनस 1 टीपी 6 मीन्स, अगर हम देखेंगे टीपी 7 आ गया, टीपी 7 माइनस 1 मीन्स 6. तो ये आ जाएगा आपका 55 माइनस 50, डेट इज 5 यूनिट आ जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ गया? 5 आ गया. अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, देखिए, तो एम पी इज इक्वल टू डेल टीपी होगा कितना? 55 माइनस 50 अपॉन 7 माइनस 6, डेट इज 5/1. डेट इज 5/1. डेट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. तो इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको निकालना सिखाया, और मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ टेबल, एंड आई विल टेल यू द डायग्राम. फ्रॉम टेबल हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज we are doing marginal product.
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट लैंड। आपको पता है लैंड तो होती है फिक्स। लैंड मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है किसी की, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। मैंने आपको ये टेबल बताया था किस तरीके से आपको टेबल ये ध्यान रखना है, ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें लिया यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लेबर। और हमने यूनिट ऑफ लेबर जो ली वो हमने यूनिट ऑफ लेबर कितनी ली, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या करा, लैंड लिया 1 हेक्टेयर और यूनिट ऑफ लेबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने यूनिट ऑफ लेबर ले लिया, आपको पता है टीपी, टीपी मैंने बताया था पहले क्या होता है, 0 4 10 18 24 28 30 30 24। मेरा टीपी आपको ऑलरेडी, मैं आपको टोटल प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन फाइंड आउट एमपी। ये टीपी मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। तो 4 - 0 दैट इज 4, 10 - 4 दैट इज 6, 18 - 10 दैट इज 8, दैट इज 6, दैट इज 4, दैट इज 2, 0 और -6 आपने निकाला। तो आपने देखा कि एमपी जो है पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर फॉल हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डायग्राम बना दिया, ये बना 0 ओ एक्सिस ओ और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखा एमपी और यहाँ पे आपने लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर, आपने लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर। तो आपने देखा कि एमपी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ गया है और फिर इस तरीके का आ गया एमपी। मीन्स यहाँ से एमपी क्या बढ़ रहा है, फिर ये फॉल हो गया और ये 0 हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो एमपी की 3 प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। एमपी क्या होता है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। इसको हम लिख लेते हैं एमपी को। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन फाइंड आउट एमपी कर्व इनिशियली इंक्रीजेज, एमपी कर्व इनिशियली इंक्रीजेज। एमपी कर्व क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस रीचेस है मैक्सिमम, रीचेस है मैक्सिमम, रीचेस है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तक पहुंचता है और मैक्सिमम पहुंचने के बाद एंड देन फॉल डाउन, एंड देन फॉल डाउन, एंड देन फॉल डाउन। ओके, तब क्या हो जाता है, ये फॉल डाउन हो जाता है और इट बिकम पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। It become positive, 0 and negative, तो देखिए जरा डायग्राम देखिए, सारा खेल डायग्राम का है। आपने क्या है, एमपी जो है इंक्रीज विद इंक्रीजेस रेट, देन फॉल डाउन एंड इट बिकम पॉजिटिव। देखिए ये सारा यहाँ तक क्या पॉजिटिव है यहाँ तक, और ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया है, इस पॉइंट में 0 हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट नेगेटिव हो गया। तो एमपी की 3 प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। एमपी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव भी है और 0 भी है और क्या नेगेटिव भी है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बड़े अच्छी तरीके से एमपी समझाया। मार्जिनल प्रोडक्ट वैसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। तो आपने लिखना है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड, व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड। और इसके साथ आपने एमपी का फॉर्मूला जरूर लिखना है। आपने फॉर्मूला लिखना है MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1 और MP इज इक्वल टू डेल TP अपॉन डेल एक्स, आपने फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आपने, मैंने आपको जो टेबल बताया वो आपने टेबल अपना एक्सप्लेन करना है और उस टेबल के बाद आपने TP निकाला, TP से MP निकालना दिखा दिया। MP कैसे निकलता है, TP को माइनस करके निकलता है, और TP कैसे निकलता है, व्हेन वी ऐड MP, ठीक है, व्हेन वी ऐड MP। ये मैंने आपको TP भी करा दिया, MP भी करा दिया, और ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एमपी की प्रॉपर्टी भी बता दी, इट इंक्रीज विद इंक्रीजेस रेट एंड देन फॉल डाउन एंड इट बिकम पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप इसको बढ़िया तरीके से कीजिएगा, ये 100% बोर्ड में आने की उम्मीद है। CBSE क्लास 11th का टॉपिक है और ICSE बोर्ड क्लास 12th का टॉपिक है एमपी का प्रोडक्शन फंक्शन में। तो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के ऑलरेडी शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन करा चुका हूँ। मैं ऑलरेडी आपको एवरेज प्रोडक्ट मैं करा चुका हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट मैं करा चुका हूँ और टीपी मैं करा चुका हूँ। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, उसमें डॉक्टर वी भोगना का खोल के यू कैन ओपन माय चैनल, डॉक्टर वी भोगना देहरादून इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट। आप उसको देख के अपना मेरा चैनल खोल के इसमें
आप यू कैन व्यू ऑल द वीडियो, यू कैन सी ऑल द वीडियोज़। आपको वीडियो पसंद आए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 11 तो 12 के जितने जल्दी हो सके वीडियोज अपलोड कर सकूँ, ताकि यू कैन अवेल द फैसिलिटी एंड यू कैन reach in the topmost position in the board examination, especially class 12th. Thanks, Dr. Vibhaguna.